मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर रनिंग है? दैट चैप्टर इज इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का पार्ट 1। तो हमने अभी तक कवर किया था अबाउट द फिजिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज chemical equilibrium. And now today we will study about the topic that is related to the characteristics of chemical equilibrium. So like physical equilibrium, जैसे physical equilibrium की characteristics थी, सेम उसी तरीके से chemical equilibrium की characteristics है। तो chemical equilibrium की अगर हम बात करते हैं और उसकी characters की बात करते हैं, तो first character is similar that chemical equilibrium is dynamic in nature. The first point is chemical equilibrium. Chemical equilibrium is dynamic in nature. कैसे नेचर का है? डायनेमिक नेचर का है। ठीक है, मीन्स द पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट इन ए रैंडम मोशन एंड इफ द गैसेस पार्टिकल आर प्रेजेंट दे कंटिन्यूसली इन द रैंडम मोशन। द बेस्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 एंड अगेन NH3 से दोबारा से N2 और H2 की फॉर्मेशन होना एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। द पार्टिकल्स ऑलवेज इन द रैंडम मोशन, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मोशन। ओके, next characteristics that is related to the chemical equilibrium is the properties of the system become constant. The properties of the system become constant. The property of the system become constant at equilibrium and remain unchanged. ठीक है, and the third point that is related to the characteristics of the equilibrium is equilibrium attained only in a closed container. It takes place in equilibrium point takes place in closed container or closed system. ठीक है, next point of equilibrium is equilibrium can be approached from either direction. equilibrium किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन साइड से और बैकवर्ड डायरेक्शन साइड से। मे बी पार्टिकल्स रिएक्टेंट के उसमें जा रहे हो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में आ रहे हो, तो कहीं पे भी रिवर्सिबिलिटी स्टेट में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। द इक्विलिब्रियम कैन बी approach from either direction. इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं H2 plus I2 form 2HI. ठीक है, 2HI again form H2 plus I2. It is example of chemical equilibrium. And the last example that is related to the characteristics of equilibrium is a catalyst do not alter the equilibrium point. जो कैटलिस्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अल्टर नहीं करते हैं, मतलब इफेक्ट नहीं डालते हैं। ए कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। So students, these are the characteristics that is related to the chemical equilibrium. Equilibrium is a dynamic nature. The properties of the system during the equilibrium remain unchanged. Equilibrium takes place in the closed container. Equilibrium takes place from either side of the direction and a catalyst does not alter the equilibrium point. ठीक है, these are the characteristics that is related to the chemical equilibrium. And now we will study about the law that is related to the chemical equilibrium. So आज हमारा first law है बच्चों, law of mass action. The law this is called law of mass action. Law of mass action. Understand this concept, that is what is the law of mass action. Firstly, we know about the, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए about the definition, about the concept of the law of mass action. So suppose we have an example, we have a reaction A plus B form product. एक रिएक्शन है जिसके अंदर A और B रिएक्टेंट्स है और क्या बन रहा है? फॉर्म हो रही है B की, उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है।
तो जो ये जो लो है बेटा रिएक्शन के रेट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और आप लोगों को पता है जो इक्विलिब्रियम भी होता है, इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम जहां एग्जिस्ट करता है उस कंडीशन को भी हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो टू एक्सप्लेन द हाउ द रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सो आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट दिस लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सपोज वी हैव ए जनरल रिएक्शन दैट इज A plus B form the product and the rate of reaction, रिएक्शन का जो रेट है बेटा, किस पे रिएक्शन क्यों स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन किस लिए इंक्रीज वो हुई, स्पीड अप हुई है, किस लिए इनिशिएट हुई, तो दैट इज डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। को किसके रेट पे डिपेंड करती है रिएक्शन, रिएक्टेंट की। जब तक रिएक्टेंट नहीं होंगे प्रोडक्ट तो बनने से रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन A or B, here the concentration of the reactant, here the A and B are called concentration of the reactant. So rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants. ये दो reactants, इनका जो product है, product मतलब इनका जो multiply है, product है, इसके ऊपर डिपेंड करता है rate of reaction. This is called law of mass action. And you must know about this, that this directly proportional sign is replaced by a constant that is called K, and here the A and B. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस ए इंटू बी। और आपको मैंने अभी बताया जो ए और बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। जो रिएक्शन चल रही है तो उसकी जो अमाउंट है, उसको जो कंसंट्रेशन है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर द मोलर कंसंट्रेशन हियर। एंड इफ ए एंड बी टेकन एज यूनिटी, अगर हम ए और बी को यूनिटी कंसिडर कर लें, ए एंड बी टेकन एज यूनिटी, अगर हम ए और बी को यूनिटी कंसीडर कर लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा कांस्टेंट पे। जो रेट कांस्टेंट का जो कांस्टेंट है के, इफ द कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी लॉ को हम एक तरीके से और समझा सकते हैं, दैट इज सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, और मैंने क्या लिया है, ए और बी, ये होते हैं बच्चे। क्या आपको चेंज नजर आ रहा है, सब कुछ वही है, बट मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी रिप्रेजेंट करे हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी बच्चे इन्हें बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मींस बैलेंसिंग कोफिशिएंट। आप लोगों को पता है जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है उसे बैलेंस करना। अब हमने सपोज बैलेंस किया, आपको पता है बैलेंस करने के लिए हम कोई भी इंटीजर यूज करते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं, जितनी बैलेंसिंग की नीड होती है। और बैलेंसिंग के समय जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा आगे लगता है, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में सीखा है। अब आइए सपोज मेरे पास, तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना बच्चे, वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर आगे कोई भी बैलेंसिंग कोफिशिएंट लगा होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। वो किस केस में होगा, जिस केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मींस बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, या हम बोल सकते हैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। सो हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन विल रिप्लेस बाय के, यू नो दैट, एंड द ए एंड बी तो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आपसे पूछा जाए अगर डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। किसकी मोलर, ए और कैपिटल बी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द product of molar concentration of the reactant and raised to the power of their balancing coefficient, means raised to the power of their stoichiometric coefficients, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों इसी लॉ से अब हम एक और लॉ सीखेंगे, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगला लॉ है हमारा इसी से रिलेटेड। तो पहले तो आपको ये लॉ समझ आना चाहिए, बिकॉज अगर ये लॉ समझ आता है तभी अगला लॉ हमारा हम सीख पाएंगे। तो हम अगला लॉ है बेटा हम लोगों का लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। We will study about the law of chemical equilibrium, but law of chemical equilibrium से पहले आपको सबसे पहले law of mass action की बच्चों डेफिनेशन याद होनी चाहिए।
ठीक है, तो क्योंकि डिफाइन पूछी जा सकती है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसके बाद हम करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब आइए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। So what is law of chemical equilibrium? So suppose we have a reaction, we have a general reaction, A plus B forms C plus D. ठीक है, A plus B forms C plus D. बट ये जो रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्शन कैरी हो रही हैं। कौन सी? एक रिएक्शन है यहाँ पर A plus B forms C plus D. This is called forward reaction. और एक रिएक्शन इस रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन के हिसाब से जो हो रही है वो है C plus D form A plus B. This is called rate of backward reaction. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? We have a let a general reaction. Let a general reaction. एक general reaction हमने ली, that is equilibrium reaction हमने ली, A plus B form C plus D. ठीक है, in a reversibility condition. So इससे हमारी दो रिएक्शन निकल के आती हैं, आप लोगों को पता है, मैंने बताया था। एक होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो यहाँ इसमें से एक रिएक्शन निकलती है, दैट रिएक्शन इज A प्लस बी फॉर्म C प्लस D। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये, और मैंने क्या बोला, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो वापस जा रही है, ये वापस जा रही है ना C प्लस D अगेन फ्रॉम A प्लस B, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। सो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to A and B. ठीक है, here the directly proportional sign replaced by KF. Here the F represent the forward and K represent the constant. This is the rate constant. K is the rate constant for forward reaction. So it is a rate constant for forward reaction. So what is KF बच्चों? Rate constant for forward reaction, and it is equal to rate of forward reaction. So the rate of forward reaction is equal to KF. This directly proportional sign because of the forward reaction. ये एक forward reaction है, ये एक मैंने जनरल रिएक्शन ली है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन ली है। इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या सिखाता है? जो रिएक्शन का रेट होता है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन क्या है? A और B। So capital A and capital B are the molar concentration of the reactant side, and this directly proportional sign will replace by KF. Here the K represent the rate constant, and the F represent the forward rate constant. So A and B into A and B. The rate of forward reaction is equal to KF into A into B. Okay. सेम इसी तरीके से अब आ जाइए बेटा बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन अगर हो रही होगी तो C plus D give rise to A plus B. So in this case also, according to law of mass action, according to law of mass action, the rate of backward reaction, the rate of backward reaction is directly proportional to C and D. Rate of backward reaction किस पे डिपेंड करेगी? Concentration of C and concentration of D. Okay, and this sign will replace by KB. This is the backward constant. ठीक है, proportionality constant but for backward side, and into C into D. So rate of backward reaction equal to KB into C into D. C and D are the concentration here. But during the reversible reaction, जब रिएक्शन उल्टी जा रही है, अपोजिट हो रही है, तो रिएक्टेंट्स ये बन गए। जब A से B की तरफ A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस D, तो फॉरवर्ड तो रिएक्टेंट कौन था? A और B। और जब रिएक्शन रिवर्स चलने लगी तो C और D क्या बन गए? रिएक्टेंट बन गए, और A और B क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है? किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? C प्लस D। सो इनका प्रोडक्ट C इंटू D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन किससे रिप्लेस हो रहा है? KB. Here the K is the constant and B is the backward, B is the sign of backward. तो KB into C into D.
But we know that at the equilibrium condition, rate of forward become equal to rate of backward. अब हमारा अगला पॉइंट ये है, ये अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये है, बट एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैं रब कर रही हूं, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ backward reaction, and the rate of forward is kf into a into b, kf into a into b, and rate of backward क्या है बच्चों, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है बच्चों, kb into c into d, kb into c into d, both are equal to each other, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों, हम कर सकते हैं kf अपॉन केबी को नीचे ले जाइए, सी डी यहां से एबी को क्रॉस कर दीजिए, नीचे ले आइए एबी, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड कांस्टेंट एंड बैकवर्ड कांस्टेंट का जो रेशियो है, इसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैपिटल के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कैपिटल के की जगह बच्चों हम के सी भी लिख सकते हैं। सी रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, के यहाँ पर जो के है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के सी अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है तो ये कंसंट्रेशन है किसकी, फॉरवर्ड की साइड और बैकवर्ड साइड की जो कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जहां भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बच्चों, वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सो के एफ इंटू ए इंटू बी हमने निकाला फॉरवर्ड के लिए, ये आपको इक्वेशन 1 दिख रही है, और के बी इंटू सी इंटू डी निकाला हमने रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए, ये इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है। दोनों को आपस में रिलेट कर दिया, के एफ अपॉन क्या आ गया के बी इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन क्या आ गया ए इंटू बी। के एफ अपॉन के बी को हमने कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, दैट कैपिटल के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ ए के एंड स्मॉल सी, एंड इट इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। So what is equilibrium constant? Equilibrium constant ही law of chemical equilibrium को रिप्रेजेंट करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। वो एक ही बात है, चाहे आपसे पूछा जाए व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आपसे इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है के दिस रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, आप बोल सकते हैं इट इज ए रेशियो। ये एक रेशियो है, किसकी रेशियो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट वाई डिस्कुल प्रोडक्ट बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड के एंड के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अप टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड। तो आपको अल्टीमेटली बच्चों आज ये बात पता चली, ये किसमें, जब मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, जब मैंने आपको एक रिएक्शन लिखकर दिखाई A प्लस बी फॉर्म C प्लस डी, तो आपको पता है ये कौन सी साइड थी, ये प्रोडक्ट साइड थी, और बच्चों ये कौन सी साइड थी, ये रिएक्टेंट साइड थी। तो हमारे पास क्या बन गया अल्टीमेटली, हमारे पास बना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज द प्रोडक्ट साइड इन द इनिशियल कंडीशन बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट, सो के रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व करने आ जाए, के की वैल्यू सॉल्व करने आ जाए, तो आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखनी है। हियर द सी डी ए बी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखनी है, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन को नीचे लिखना है, और के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। और आपको एक बात बता दो, ये जो के है, क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रेशियो, क्यू इक्वल टू at the equilibrium condition, this is also equal to Q. Here the Q is the reaction quotient और concentration quotient। एक ही बात है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में K जो होता है वो इक्वल टू Q ही होता है। Q को हम रिएक्शन क्यूशेंट बोलते हैं, या फिर से कंसंट्रेशन क्यूशेंट बोल सकते हैं। जो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का रेशियो होता है वो Q के भी इक्वल होता है।
during the reaction. So K is equal to Q at equilibrium condition. तो equilibrium condition पे चाहे आप K लिखिए चाहे आप Q लिखिए, आपको कब equilibrium constant निकालना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यूज ऊपर रखनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यूज नीचे रखनी है. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इतना आप लोगों को मालूम हो. और इसके अलावा मैं जनरल रिएक्शन आपको लास्ट और लिख कर दिखा देती हूँ. सपोज वी हैव ए रिएक्शन AB plus BB and form the CC plus DD. तो आपको दिख रहा होगा here the small a, small b, small d, small c, small d. These are the balancing coefficient of the reaction that used in the balance the equation. And the capital A, capital B, capital C, capital D. These are the concentration. These are the values of concentration during the numerical, and A, B are the coefficients that use in the balancing coefficients. ठीक है. So here the K value is C power C, D की power D, and A की power A, and B की power B. This is called also K, and K is called equilibrium constant. और we also represent the KC, small capital K, small c भी हम represent कर सकते हैं. This is called also law of chemical equilibrium. So what is law of chemical equilibrium? According to law of chemical equilibrium, the equilibrium constant is equal to the ratio of the product of concentration of the product and raised to the power of their balancing coefficient upon product of the concentration of the reactant and raised to the power of their balancing coefficient. And this ratio is equal to the K. K is the equilibrium constant. In this way, law of chemical equilibrium represented. ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. At the equilibrium condition that takes place in the closed container, that is all the particle in the equilibrium condition is dynamic in nature, and at this condition the rate of forward become equal to the rate of backward. The reaction equilibrium point show the reversibility condition also from either side of the direction. You must remember. And at the equilibrium point, the catalyst show doesn't type of effect, do not alter the reaction. ओके, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को अल्टर नहीं करते, स्पेशली इक्विलिब्रियम रिएक्शन को. दैट इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट शो द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो इतना आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए अबाउट द लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है, दिस इज द तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन से ही कंक्लूड होकर बना है. तो आपको पता चला दिस इज इक्वल टू रेट, एंड रेट आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एट द इक्विलिब्रियम. रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. सो वी कैलकुलेट अबाउट द के. कैन कैपिटल के जो हमने जो देखा है, कैपिटल के को जो निकाला है, डिराइव किया है, हियर द कैपिटल के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, so students, आज के लिए इतना ही. In the next class we will discuss about the some reaction that is related to the law of chemical equilibrium, unit of the law of chemical equilibrium, and the relation between Kp and Kc we will study in the next class. So students, do your work in a neat and clean way and regularly.